Greetings to all of you. हमारी तरफ से आप सबको सलाम। My name is Sana Manat. मेरा नाम इशरा मानक है। Today I want to share the word of God with you. मैं आज आप सबके साथ खुदा का कलाम शेयर करना चाहती Today हूँ। my topic is waiting. मेरा आज का अनवान है इंतज़ार। I want to tell you that मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, prayer is a waiting. दुआ इंतज़ार है। I would like to start it with a grateful example that I can never forget. मैं इसको एक ऐसी मिसाल से शुरू करूँगी जिसको मैं अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती। There was a man एक शख्स था who was coming out from an opera performance जो कि एक ओपेरा परफॉर्मेंस से बाहर आ रहा था and pushed out by the crowd. और एक हजूम में फंस गया। In this process, और इसी दौरान his expensive watch was lost. उसकी एक कीमती घड़ी खो गई। It would be found not to be expensive watch, वो इसलिए उसको पाना नहीं चाहता था कि वो एक कीमती घड़ी है, but it was gifted by his parents. बल्कि उसको उसके माँ बाप से तोहफे में मिली थी। So instead of going back वो इसीलिए वापस गया and called to the manager from another place और किसी जगह से मैनेजर को फोन किया and explained him all the situation. और सारी सिचुएशन, सारा सूरत हाल उसको समझाई। And manager told to the man, और मैनेजर ने आदमी से कहा, don't hang up your phone while I will look for it. अपना मोबाइल बंद ना कीजिएगा जब तक मैं इसे तलाश ना कर लूं। The man who lost his watch जिस शख्स ने अपनी घड़ी खोई थी was waiting. इंतजार करने The लगा। time going 10 minutes, वक्त गुजरा 10 मिनट हुए, 15 minutes, 15 मिनट हुए and finally 20 minutes. और आखिरकार 20 मिनट हो गए। Finally, a worker had finding his watch and brought it to the manager. और आखिरकार घड़ी एक मुलाजिम को मिल गई और उसने मैनेजर तक पहुंचा दी। And manager picked up the phone very gladly. मैनेजर ने बड़ी खुशी से फोन उठाया, But what is this? मगर ये क्या? The mobile already hung up. मोबाइल ऑलरेडी बंद हो चुका है। The man who lost his watch वो शख्स जिसने अपनी घड़ी खोई is थी thinking that वो सोचने लगा his watch was assumed by any other person उसकी घड़ी किसी शख्स ने उठा ली होगी and he gave up. और उसने हार मान ली। He called to the manager from another place. उसने किसी और जगह से मैनेजर को फोन किया था, Therefore, the manager did not find him. इसीलिए मैनेजर उसे तलाश ना कर Today, I want to tell you that सका। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि prayer is a waiting. दुआ इंतजार है। How many people after praying thinking that when and how he answered us? कितने लोग हैं जो दुआ करने के बाद ये सोचते हैं कि उनको जवाब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। Jesus all the time says that यीशु हर वक्त हमें ये कहता है, prayer all the time and don't be disappointed. हर वक्त दुआ करते रहो और ना उम्मीद ना हो। But this is in the hand of Jesus Christ. ये सब कुछ खुदा के हाथों में है। In the Luke, the God gave a very beautiful parable. लूका की अंजील उसका 18 इसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत तमसील दी। Luke 18 chapter, लूका की अंजील 18 बाब। and he spake a parable unto them to this end that the man ought all way to pray and not to faint. फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही के, Saying there was in a city a judge which feared not God neither regarded man. किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। And there was a widow is that city, and she come into saying, avenge me of mine adversary. और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दे से बचा। And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God nor regarded man. उसने कुछ अर्सा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा, गो मैं ना खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ। Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she bear me. तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। And the Lord said, hear what the unjudged judge said. खुदावन ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, so he bear along with them? बस क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on earth? मैं तुमसे कहता हूँ वो जल्द इनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? Jesus Christ all the time says
says us, यीशु मसीह हमें कहते हैं, pray all the time हमेशा दुआ करते रहो and not be disappointed. और ना उम्मीद ना हो। First of all, finding His kingdom, सबसे पहले उसकी बादशाही को तलाश करें and everything is in your hands. और सब कुछ आपके हाथों में होगा। Jesus Christ is a grateful example in the Bible. यीशु मसीह एक बहुत बड़ी मिसाल है बाइबल में। He faced all the problems for us. उन्होंने हमारे लिए बहुत सी तकलीफें सही। He gave His life for us, उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे लिए दी, but we can't do for Him. मगर हम उसके लिए कुछ नहीं करते। He wished just only one thing, उन्होंने हमसे सिर्फ एक चीज चाहिए है, our heart. हमारे दिल। Give your heart in His hand, अपने दिल उसके हाथों में दे दीजिए and He save you. और वो आपको महफूज रखेगा। No virus can touch you. कोई वायरस आपको छू नहीं No सकता। disease can reach you. कोई भी वबा आपके करीब नहीं आ सकती। Just believe on Jesus Christ. खुदा पर भरोसा रखें, He can do everything for वो you. सब कुछ कर सकता है। Just believe on Jesus Christ. सिर्फ ईमान रखें खुदा पर। Satan's main job is make the distance between God and us. शैतान का मेन मकसद है हमारे और खुदा के दरमियान में जुदाई डालना। Corona is also the plan of Satan's. एक कोरोना वायरस भी शैतान का प्लान है जो कि इस वक्त पूरा हो रहा है। Just believe on Jesus Christ. खुदा पर ईमान रखें। Corona is not touch you. कोई कोरोना आपको छू नहीं सकता। Whenever is Jesus with you, जब आपके साथ खुदा होगा, no one can give you any problem and any disease. कोई आपको कोई भी मसला नहीं, कोई आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता और कोई भी वायरस आपको छू नहीं सकता। Thank you all of you. आप सबका शुक्रिया। Amen. आमीन।